ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? मैं दो गल्लां तुहानूं ओह दस्सणियां चाहुंदा। मैं अज तक स्टेज तो कदे गल्लां बोलियां नहीं। क्यों भी नौजवानों दसो यार, लखा लखा साडा है, लखा साडा है। ये जरूर हुंदा है कि जथेबंदियां दे विच आपां किसे कायदे कानून दे विच बझे हुन्ने आ। तीन मैंबरी कमेटी बनी है ना, हुण तीन मैंबरी कमेटी बनी है। एक बहुत सारा मतलब शंका हजे गल बाकी, क्योंकि जिन्नी की गल बाहर निकल के आउंदी है वो जिन्ना चिर सारी गल निकल के लोगों के सामने ना आवे तो पता नहीं लगता गा भी ये खमनी क्यों नहीं ये फैसला हो रहा। दो गल्लां समझो जे गल की है। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू नौजवान, मेरे बुजुर्ग वीर, सत्कारयोग साडियां मावां भैणां धीआं, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान दोस्तों, मैं एक गल पूछनी चाहना पहला सारिਆਂ ਤੋਂ, ईमानदारी नाल दस्सिओ भी जमीन रखण दे हक चों कि जमीन नूं वेखी जाऊ जो हुंदी आ होण दी रखनी चाहिदी है। रखण दे हक चों, रखण दे हक चों। फिर मैनूं एक गल दस्सिओ, विचारियो जे गल नूं। जमीन दा वारस या जमीन दा मालक हर परिवार दे विचों एक आदमी बारी बारी तरतीब नाल 25 तो 30 साल उहदा मालक रहिंदा है। 25-30 साल बाद उहदा मालक बदल जाता है। साडा बजुर्ग कदे मालक सी इस जमीन का, अज इस जमीन का मालक मैं हाँ, तो कल नूं इस जमीन का मालक मेरा बेटा होएगा। आपां जिहड़े भी लड़ रहे हैं, हकीकत समझ के लड़िए कि आपां जमीन बचाउण वास्ते लड़ रहे हैं। कि ऐ लगता है भी असी जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपां जिहड़ी लड़ रहे हैं, जां मतलब बार बार जिहड़ा सवाल उठ रहा है कि ये लड़ाई असी कल्ले जित लांगे या कोई नौजवान इहदे विच जेकर पार्टिसिपेट ना करे ये लड़ाई जित्ती जाएगी। मैनू नहीं लगता जित्ती जाएगी। क्यों मैं कही है गल ये? एक गल तो मिसाल है समझण वास्ते। आपां सारा परिवार घरे बैठे होइए, नौजवान बच्चा भी घरे बैठा है, बुजुर्ग बापू भी घरे बैठा है, लाणेदार भी घरे बैठे ने, छोटे बच्चे भी घरे ने। अगर तुहाडे घर दे विच तुहाडे घर नूं कोई लुट्टण आ पवे ते आपां ये कहिए साडी नूंह राणी कि मेरे नाल मेरी तो सस नाल बनी नहीं, या बेटा ये कहे कि मेरी तो बापू नाल बनती नहीं, कि वेखी जाऊगी चोर नूं या डाकू नूं लुट के लै जाण दिए, तो मैनूं लगदा फिर सियाणे होवांगे किते। आपां नूं बचाउणा है, तुहाडी चीज़ है ये जिहड़ी जमीन है ये तुहाडी है।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੋਚੋ ਖਾ ਭਲਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਲੱਖਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਾ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਮਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਲੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ? ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਗਿਆ, IG ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ
अज हुण मैनूं ऐ दसो भी ये सारा कुछ दी जो उलझना साडे ते किन्नियां है, फिर साडे ते एक भी है गल कि इहनूं तुसीं फैसला लैना जिहड़ा उहनूं संयुक्त मोर्चे दे विच दी निगालो। हुण संयुक्त मोर्चे दे विच जिहड़ी लीडरशिप आ बाहरलियां स्टेटां दी भी है, उन्हां सारिआं नूं असीं सद के बहुत छेती तुहाडी जिहड़ी मन दी भावना है वाहिगुरू किरपा करे इहनूं आपां हल कर लांगे। कोई घबराउण वाली गल नहीं, असीं तुहाडे नाल है। नौजवानां तो एक सूत भी बाहर नहीं, तुहाडी भावना मुताबिक ये सारा कुछ होएगा। कोई ये डरन वाली गल नहीं कि कोई मन च ना रखी रखो कि लखे नाल साडी कोई दूरी है, कोई लखे नाल दूरी नहीं। लखा साडा है और साडा ही रहेगा। और जदों लखे ने महराज दे विच जिहड़ी रैली हुई है, उस रैली दे विच किसी किसान जथेबंदी के खिलाफ ना बोलते हुए सगों ये कहा है भी आप मोर्चा जितना, मोर्चा तकड़ा करना है। तो फिर आप सारे यार उस सुनेहे नूं समझ गए कि मोर्चे नूं पहल देइए, मोर्चा साडा तकड़ा है, मोर्चा जित लईए, दुश्मन साडा तकड़ा है। दुश्मन सच्चियों तकड़ा है यार, तुसीं उहनूं समझो तुहाडा दुश्मन किड्डा तकड़ा है। इहदे खिलाफ बुद्धि नाल लड़ना पैना है, बहुत समझदारी नाल लड़ना पैना है। हुण अभिमन्यू कुहाड़ बोल के गया है, वो एक नौजवान है, सिर्फ मेरा ख्याल है तुहाडी उम्र का ही वो है। गर्मजोशी तो वो भी उन्नी है ना, लेकिन जिहड़ी वो गल कह के गया उन्होंने बहुत समझण की लोड़ है। बीजेपी बाहरलियां स्टेटां दे विच घिर चुकी है, जिमें जिमें अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वल नूं वध रहा है। अब मैं तुहानूं दो चार गल्लां वो दस रहा कि अंदोलन कित्थे खड़ा तुहाडा, तुहाडे लई तुसीं पिंडां 'च बैठे हो, अज इत्थे आए हो, साडी जिम्मेवारी बनदी है दस के जाइए कि अंदोलन अपना कित्थे खड़ा है। अंदोलन बाहरलियां स्टेटां दे विच दिनों दिन फैल रहा है और बहुत वड्डी पद्धर ते फैल रहा है। यूपी नूं आपां सारे मानते हैं कि यूपी जिधर नूं पलटा मार गई समझ लो वो गया, अगर जिहदे खिलाफ पलटा मार गई यूपी हो गया। इस वेले यूपी पूरी उबाला दे विच है, उबल रही है यूपी, तुहाडे नालों ज़्यादा यूपी उबल रही है। तो इहदा मतलब आपां अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वाल नूं जिवें वध रहा है, हुण सरकार की कोशिश ये है कि अंदोलन की शुरुआत पंजाबियों ने की है, तो पंजाबियों नूं इत्थे पंजाब च ही उलझाया जावे। वो आपां नूं पंजाब च उलझाउणा चाहुंदे आ यार। मैं उस दिन भी ये गल कही सी, पहले दिन ही बहुत बारी मेरे नाल सवाल जवाब हुंदे आ इन्हां दे कि जी गरेवाल साहब आ कहिंदे आ, इहदा की करिए। मैं ये कहना हुन्ना भी गरेवाल की औकात की है, ओदा लैवल की है, क्यों ये बारे अगर बीजेपी के किसी लीडर की होंद है, अगर बीजेपी के किसी लीडर की मौजूदगी वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं कुछ करन जोगरा हाँ, तो उन्होंने घट्टो घट्ट यह पता है ना कि वोटां तो पंजाब चों मिलनियां ना। अगर उन्हें MLA बनना, MP बनना, पंजाब चों ही बन के जाना है, तो घट्टो घट्ट पंजाब के हक दे विच जाके केंद्र दे विच रौला पावे, भावें उन्होंने मरण मरते भी बहना पवे, तो उत्थे बैठण दा फर्ज बनदा ना उन्हां दा। अगर वो करके बैठूगा कोई बंदा तो कि पंजाब के लोग जानणगे नहीं, उसकी रिस्पैक्ट नहीं करनगे। जिहड़ा भी पंजाब का बीजेपी का लीडर बीजेपी नूं छड्ड के साडे अंदोलन दे विच शामिल हुंदा है तो लोग उन्हें जफ्फियां पाउंदे आ। तो जे कोई अजिही काम करेगा कि जेकर बीजेपी सरकार नहीं मानती असीं मर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है असीं उहदा सत्कार नहीं करांगे, करांगे ना। तो जे ये जी बयानबाजी इहो जी करनगे तो फिर गुस्सा भी आऊगा। गुस्सा आना तो सुभाविक है। जो सानू साडे नौजवान ये कह रहे हैं, मैं परसों चौथे एक रैली दे विच किते गया कट्ठ च, ईमानदारी नाल मैं गल करदा, मैनूं कहा ठल के गया मुंडिया ने कि जी इहदा करो कोई हल, हरजीत गरेवाल दा। और मैं उन्होंने कहा ना यार तुसी कोई हल हुल करने वाले पासे ना तुरो। तो उदों पता लग्या जाके जदों ओमलोड दे विच जब खड़ा हो गया। इन्हां लोकां नूं ये लोग बयानबाजी यह जी पता दो कारण इन्हां दे जी बयानबाजी देण दे। एक तो जिहदा कोई जब आपकी पार्टी दे विच वजूद नहीं,
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ। शायद मैं किसी लैन च आ जा, शायद मैनू कोई टिकट मिल जाए। एक तो उन्होंने ये दौड़ है। दूसरा, पंजाब का माहौल बिगाड़न दे विच कोशिश की जा रही है। सिर्फ पंजाब का माहौल बिगाड़ के दिल्ली के अंदोलन नूं तुसीं है। मैं फिर बेनती करा, अगे भी बुलारिया ने बोलिया है, बाबा जी बोल के गए ने डिप्टी साहब कि यह अंदोलन तुहाडे ते टिकिया, तुहाडे ते सरदारी आ तुहाडे हत्थ च इस अंदोलन की। वो चाहते ने कि अगर पंजाब भी ये पग्गां वाले पंजाब च उलझ जाण तो दिल्ली दे विच अंदोलन आ जिहड़ा कमज़ोर किया जा सकता है। वो आपां नूं इत्थे लिजाउणा चाहुंदे आ। इस करके मेरी हत्थ बन के बेनती है कि विरोध जिहड़ा करना है बड़े बड़े तरीके नाल, बहुत वधिया तरीके नाल करो। कोई ऐसा ना करिए कि आप हुण मैनूं 5 दिन हो गए ऐसे काम च ही उलझे फिरदे आ। साडे कोलों कि भी साडे बंदे अरेस्ट क्यों कीते, वो अगले दिन रेड मारदे आ, किते ना किते 2 बंदे चक्के गए, 3 बंदे चक्के गए, 4, फिर असीं कोशिश करदे इन्हां नूं छड़ाईए जी। तो फिर आप इहदा मतलब असीं पंजाब च अंदोलन कर लग जांगे ना, असीं दिल्ली थोड़ी जा पावांगे। साडी लड़ाई दिल्ली है, सानूं इत्थे लिजाउणा चाहुंदे आ ओह। सो मेरी हत्थ बन के बेनती है, जे मेरे वीर हो तो एक गल का मैनूं विश्वास दिवाओ कि इत्थे विरोध भी करना है पर जाबते च रह के करना है। ईमानदारी हथ खड़े करके विश्वास दो, करोगे में? बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस गल की बड़ी लोड़ है यार, जाबते च रह के जिहड़ी चीज़ नूं आपां ही ना देख सकीए वो करन दी की लोड़ है। सानूं थोड़ी समझदारी नाल ये स्टैप चकने पैणगे। सो मैं एक हुण थोड़ी जी गल तुहाडे नाल होर इस विषय ते करनी चाहुंदा है कि इत्थे पत्रकार भी मेरे ते सवाल कर रहे सीगे कि जी ज्ञानी जी ये कहंदा है कि दसो कानूनां दे विच काला की है। ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂਰਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 1000 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं प्रैस के माध्यम के राही ज्ञानी जी नूं मैं दसना चाहना कि कानून च काला की है। सब तो पहली गल तो कानून बनाउण वालियां दी नीयत ते नीति काली है, उन्हां दी भावना काली है, तां कानून काले ने। दूसरी गल, कानून बनाउण वालियां दे तरीका गलत है। संविधान नूं जिहड़े संविधान दी लोग सौं खांदे आ रोज़, उस संविधान नूं तोड़ के कानून बनाया गया है। संविधान इन्हां नूं इह कानून बनाउण दा राइट ही नहीं दिंदा जिहड़ा कानून साडी बीजेपी सरकार वल्लों बनाया गया है। तीसरी गल मेरे वीरो, इस कानून दे विच ये तीन कानून ने, 2 ते कानून नवे बनाए आ, तीजे दे विच सोधां कीतियां है। ते उहदे च एक गल कही है, हुण तुसीं इहनूं समझोगे जो फिर पता लगूगा। ये गल कही कि किसान नूं कोर्ट जा अगर पैसे लैन देन दा झगड़ा हो जाए किसान दा ते खरीददार दा, किसान कोर्ट नहीं जा सकता। हुण ये गल नूं तुसीं समझो भी जिथे लोकां दा कोर्ट जाण दा अधिकार खोलिया जावे, की वो कानून नूं काला नहीं मन्नांगे? दसो भी दोस्तों हथ खड़े करके। कानून काला है ना, जिथे लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार ही खोलिया जाए। तो ये लोग उन्होंने किवें बयान करते हैं, की बोलते हैं? ये कहते हैं कि जी असी तो बहुत सौखा करता, SDM तो ही इंसाफ मिल जाना है। तुसी SDM तो इंसाफ छेती लै लोगे, तुसी DC तो इंसाफ छेती लै लोगे, कोर्टां दे विच बड़ा लंबा समा किसान उलझा रहेगा। इस करके असी SDM तिकर ले आंदा। हुण इत्थे समझो जे नीयत काली किवें आ।
मेरे दोस्तों, अपना इलाका गन्ने की खेती करने वाला नहीं भावें, ਜਿਹੜੇ लोग गन्ने की खेती करने वाले है, आ बैठे ने राजू होनी, आ मुंडा जो औलख राजू औलख बोल के गया है, गन्ने की खेती करते हैं, 3-3 साल तो इन्हों पैसे नहीं मिल रहे। लोगों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच केस कर लिया, केस दे विचों फैसला लोगों के हक च आ गया। जो फैसला लोगों के हक च आ गया है, हाई कोर्ट का फैसला, गल ध्यान ना समझो जे, हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि किसानों के पेमेंट तुरंत जारी की जाए, इन्हों समेत इंटरस्ट पैसे दवाए जान। ये क्या हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने लागू किने करना हुंदा है? जिला प्रशासन ने। की ख्याल है भी दोस्तों? फैसला लागू तो प्रशासन ने करना है ना, डीसी ने करना है, थले एसडीएम ने करना है, पंजाब पुलिस के एसएसपी ने करना है, डीएसपी ने करना है, थानेदार ने करना है। यही है ना प्रोसैस। मैं कहना भी एसडीएम के डीसी 4-4 साल हो गए केस जिते बैठिया किसानों अज तक उन्होंने जी कोर्ट के फैसले लागू नहीं करा सके, तो की वो किसानों के हक च फैसला दे देंगे? सोचो भला, लड़ाई इस गल की है कि ये कानूनों की, मेरे दोस्तों, ये ऐस करके ये कानून काले ने, कानूनों के मगर की भावना ये है। कहता वेखन नूं, हुण मोटी जी गल मैं होर दसां तुहानूं, पहला तो मैनूं ऐ दसो, मन ऐ काला ज्यादा नहीं पैंदा कि भी निमेड़ो छेती छेती गल घर नूं जाइए, टेक के बैठे हो। हुण एक गल नूं होर समझो जी, ये कानूनों की गल मेरी थां ते अगर बीजेपी के लीडर ने तुहाडे विच रखनी होवे तो वो एडे वधिया ढंग नाल रखूगा, तुसीं कहोगे यार ठीक है, फिर ये कानून च कोई माड़ा तो है नहीं। मैं तां ये गल्लां दस रहा कि पत्रकार वीर का सवाल सीगा कि वो जैनी कहंदा जी सानूं दसो कानून च काला की है। कानून च लिखिया जी 3 गल्लां बड़ियां समझो जे, नोट करो सारे, वो लास्ट तिकर ते मेरियां भैणां भी नोट करो। कानून च लिखिया उन्होंने कि किसान की जमीन कोई ठेके ते नहीं लै सकता, कोई गहने नहीं लै सकता, कोई बै नहीं खरीद सकता। 3 गल्लां हुण इह तां मैं बोल रहा, जे किते मेरी थां ते कोई बीजेपी का लीडर बोले वो ये कहूगा क्यों जी दसो किसानों की माड़ा, फिर तुसीं कहोगे जी कोई माड़ा नहीं भी ना, साड़ी जमीन कानून तो सगों ये कहंदा ना कोई गहने लै सकता, ना कोई बै लै सकता, ना कोई ठेके ते लै सकता है। कानून तो बहुत वधिया है, हथ खड़े करवाऊगा ना तो भी हाँ ठीक है। हुण चलते अगली लाइन, एक होर लाइन की लिखी है, अगे लाइन लिखी है कि अगर किसान ते जिहड़ा जमीन देने वाला है, ठेके ते देने वाला है, या जो भी जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वो दोवें सहमत है, अगर वो दोवें सहमत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक लाइन हुण इस लाइन दे विच मेरे दोस्तों सारा ही कानून दा वो एक कह लो समुंदर आ जिहड़ा वो कुजी च पाया हुआ इस लाइन च। ते ये लाइन तुहाडे सामने बीजेपी के लीडर के तौर पर रखनी होवे तो इउं रखूगा अगला भी तुहाडी मर्जी ते आ, तुसीं किसी नाल कॉन्ट्रैक्ट करना करो, नहीं करना ना करो, की माड़ा है? फिर तुसीं कहोगे भी ये भी ठीक है गल, कोई माड़ा नहीं। क्यों भी सज्जनों, ये गल समझ आ रही है ना भी कोई माड़ा नहीं। हुण ये माड़ा किवें इहदे विच कोशिश ऐस आ मंगली जी मैं गल दसी एक लाइन उहदे ते ध्यान केंद्रित रखना आपां सारिਆਂ ने थोड़ा जिहा समा कि अगर दोनों सहमत है तो जो मर्जी हो सकता है। हुण देखो तुहानूं सहमत करके जमीन किवें लैणी आ, सहमत करना है तो ये भी कहिंदे ने, ये भी कहिंदे है कि पूरा कानून फरोल लो, पढ़ लो, एक भी लाइन लभ के विखाओ जिहदे च लिखिया होवे कि किसान दी जमीन जाएगी। ये भी ठीक है गल, सारा फरोल लियो, सारा पढ़ लियो, किते नहीं चाहुंदी एक लाइन भी कि जमीन जाएगी। पर जमीन जाएगी किवें जाएगी? मेरे दोस्तों आपां ये तो गल सारिਆਂ नूं पता लग गया होएगा कि प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी के बराबर जिहड़ी आउणी है
वो जड़ है तुहाडी जमीन लैण दी। ये एक तरीका है तुहानू सहमत करना है कि तू जमीन देने लई सहमत होवे। किवें सहमत करना है? प्राइवेट मंडी आ गई जी, वो कहते हैं जिहड़ा प्राइवेट प्लेयर असीं सौदा कर दिंदे आ ये सारे टैक्स भरूगा, सारे कानून है जिहड़े मंडी बोर्ड दे ते लागू होणगे, ये फीस भी भरूगा, ये उहदा सर्टिफिकेट भी लऊगा, लाइसेंस भी लऊगा, सारा कुछ करूगा, पर खरीदू कित्थे? बाहर खड़ के। असीं कहने जे इन्ना कुछ देता तो मंडी जाके खरीद ले। समझो जे कहानी नूं, इत्थे आ गल। असीं कहने जो तुसीं सारियां शर्तां उहदे ते लागू करतियां तो मंडी जाके खरीद ले। वो बाहर क्यों खरीदूगा? वो बाहर प्यारो इस करके खरीदूगा कि थोड़ा जा समा, साल, 1.5 साल, 2 साल तुहानू तुहाडी फसल का रेट वध देवेगा। किवें? जिवें जियो ने सिम फ्री दिते या नहीं दिते, डाटा फ्री दिता ना, दिता ना, तो जो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਟਿਕਾਲੀਆਂ दूजिਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ क्यों नहीं फ्री ਦਿੰਦੇ? यही कुछ है ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਇਆ, ईमानदारी ਨਾਲ दसो फसल मंडी च बेचोगे कि बाहर खड़े नूं बेचोगे? बाहरले नूं बेचांगे ना। जो फसल बाहरले नूं बेचती तो मंडी दे विच आड़तिया ते मंडी दे विच मजदूर ते मंडी च होर सिस्टम किन्ना चिर बैठा रहेगा? खत्म हो जाऊगा। वो आपदा टंड फोड़ी चक के ले जाएंगे। अगली FCI ने खरीदना मंडी चों ही। FCI तो शर्त है तू बाहरों नहीं खरीद सकते, तुसीं मंडी चों खरीदना है। जो FCI मंडी चों खरीद सकती है, FCI वास्ते मंडी च दाने ही ना आए तो FCI का रिकॉर्ड की बोलूगा? निल है। तुसीं बाहर 50 रुपये वध बेच के आ प्रैस वालों के सामने कहोगे असीं जी FCI तो की लेना है, मंडी के अंदर जाके की करना, उत्थे तो सानूं 50 रुपये रेट घट मिलता है, इत्थे सानूं 50 रुपये वध मिलता, असीं तां भागो भाग है, असीं खुश हैं, बेचांगे असीं उत्थे। और 2 साल तो बाद FCI टुटेगी, मंडी सिस्टम खत्म होएगा। और जो खत्म होया उदों साडी फसल का रेट बिहार यूपी वाला होएगा। प्यारिओ आ थोड़े जिले ने भी ऐतकी बहुत उदों जो बाहर तो झोना आके वेख रहा सी, फड़ते रहे हो ना तुसीं सारे, फड़िया ना। वो क्यों आउंदा सी? साडा झोना 1888 विकदा है, तो जे बाहर रेट 1888 होवे तो बाहरों इत्थे क्यों आवे? जेड़ा मोदी रोज टारा मारदा है कि MSP है, MSP था, MSP रहेगा। जे तेरा पतंदर MSP था तो वो 1800 क्यों इत्थे आके बेचा उन्होंने? जे तेरा MSP था तो बिहार वालियां नूं 900 झोना क्यों बेचना पिया? क्यों 900 नूं सिटना पिया? जे तेरा MSP था वाली गल है तो साडे पंजाब दे अंदर किसानां नूं 1888 नूं 1840 रुपए की बजाय मक्की 600 क्यों बेचनी पई बई? तो यदा मतलब दोस्तों साडे झोने का रेट भी उही होएगा जिहड़ा बिहार दे विच है। हुण ये कहिंदे ने, ये कानून च कहिंदे ने जो सानू मूर्ख बनाउण वास्ते कहिंदे जी मंडी खोलती तो जिथों दा मर्जी किसान जिथे मर्जी जाके बेचे, मंडी खोलती तो एक शर्त लाती, वो पता है वो ये शर्त लाती कि जिन्हें आपकी फसल बेचनी है आपकी फसल का ब्यौरा देवे पहला कि मैं इन्ने किले कणक बीजी है, इन्ने किले झोना बीजिया है, उसका रिकॉर्ड देवे, उहदे रिकॉर्ड के मुताबिक चकांगे तो पता लग गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण तुसीं मैनूं ऐं दसो कि बिहार का किसान, यूपी का किसान, किसी होर स्टेट का किसान जिहड़ा इत्थे ब्यौरा ही ना दे सकिया वो पंजाब च आके फसल किवें बेच लू? तो पंजाब का किसान मध्य प्रदेश च जाके फसल किवें बेच लू जो तुसीं उत्थे उहदी फसल का ब्यौरा, जमीन का ब्यौरा ही ना दे सके? झूठ है ना, ये गल स्पष्ट हो रहा ना भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं अजिहियां गल्लां कर करके।
तो मेरे दोस्तों MSP इन्हां दा बयान दिंदा गडकरी, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ है लगभग 7-8 महीने पहलां दा एक, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ कि MSP देश की अर्थव्यवस्था ते बोझ है। MSP नालों घट रेट के उत्ते फसल सानू देश के अंदर ते देश तो बाहरों मिलती है। हुण इहनूं गल नूं समझो, जे मैं गल ये कही है कि MSP साडी अर्थव्यवस्था ते बोझ है ते MSP नालों घट रेट ते